Hello students, in previous video we have revised how to add and subtract the given lengths. And now today we will revise the word problems based on addition and subtraction of length. So here we have worksheet number 4 and let us read the question first. Here a shopkeeper had 35 meter 50 centimeter cloth of one kind. This is the length of clothes of one kind, and 24 meter 25 centimeter cloth of another kind. और दूसरी टाइप का cloth है, उसकी length इतनी है. So here two types of clothes are there and their lengths are given. And what you have to find, how much cloth did he have altogether? Now, do you remember the keywords of addition and subtraction? So, the keyword of additions are altogether, in all, sum, and add, addition, add, right? So, these are some of the keywords of addition. And the keyword of subtraction are left, remaining, difference. So these are the keyword of subtraction. So we have discussed many times. So here again there is a keyword, how much cloth did he have altogether? सारा मिलाकर कितना cloth उसके पास है, right? So altogether is a keyword of addition, right? So what you have to do, we have to add the lengths of clothes, right? So this is a very simple question. You have to add both the given lengths. So let us do one question so that आपको clear हो जाए कैसे हम कर रहे हैं. So we solution number 1. So keep it in mind that first of all we have to write what is given. जो भी चीज गिवन होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे. सो व्हाट इज गिवन हियर, लेंथ ऑफ क्लोथ ऑफ वन काइंड, राइट. और जो इसमें से जो वर्डिंग्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो हम क्वेश्चन से ही वर्ड लेके बना लेंगे, राइट. या फिर आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड से इनको लिख सकते हैं. सो लेंथ ऑफ क्लोथ ऑफ वन काइंड, ये क्या है, व्हाट इज दिस, 35 मीटर 50 सेंटीमीटर. This is the length of cloth. और कौन से cloth की, of one kind. And what is this? This is the length of cloth of another kind. तो ऐसे ही हम लिख देते हैं. So we take the words from the question. So length of cloth of one kind. एक टाइप के cloth की length given है. Secondly, length of cloth of another kind. So here the length of the cloth is given, that is 35 meter and 50 centimeter, and length of other cloth is 24 meter and 25 centimeter. So now what we have to do, we have to add them. Why? Because we have to find out the total length of cloth, या फिर length of cloth he have altogether. आप कुछ भी लिख सकते हैं. I am writing here total length of clothes. So total length निकालने के लिए we've already discussed that इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, because there is a keyword altogether. total length निकालनी है दोनों clothes की, add them. सो इट्स अप टू यू. आप यूनिट्स को ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मीटर एंड सेंटीमीटर हेयर, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. बट कीप इट इन माइंड, जो आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके प्रॉपरली वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए. यहाँ पर वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस है. एंड यूनिट्स इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू राइट हेयर यू कैन, एंड इफ यू वांट टू राइट हेयर देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. सो हेयर सेंटीमीटर के नीचे हम सेंटीमीटर, 5 plus 0 is 5, 5 plus 2 is 7, and meter के नीचे मीटर, 5 plus 4 9, 3 plus 2 5.
So total length of cloth he have is 59 meter and 75 centimeter. So to solve word problems, first of all write what is given. जो भी चीज given है वो आप लिखेंगे और उसके बाद जो भी ऑपरेशन यूज होना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो आप करेंगे. नेक्स्ट इज रोहन्स हाउस इज 8 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम स्कूल. रोहन का हाउस कितना दूर है? 8 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम स्कूल. स्कूल से इतना दूर है. एंड सोहन्स हाउस इज 3 किलोमीटर 220 मीटर फ्रॉम द स्कूल. और सोहन का हाउस कितना दूर है? 3 किलोमीटर एंड 120 meters. Now whose house is nearer to school and by how much? So whose house is nearer? कौन सा नियर है? 8 किलोमीटर 250 मीटर और 3 किलोमीटर एंड 120 मीटर. कौन सा डिस्टेंस कम है? सो यू नो हम क्या है, ग्रेटर यूनिट देखेंगे, बिगर यूनिट किलोमीटर्स. 8 किलोमीटर ज्यादा है या 3 किलोमीटर? So 8 किलोमीटर इज मोर. सो स्कूल के नियर कौन सा हुआ? 3 किलोमीटर. ये कम डिस्टेंस है. स्कूल से नियर कौन सा हुआ? 3 किलोमीटर 120 मीटर. ये है ज्यादा डिस्टेंस, तो ये ज्यादा दूर है. एंड 3 किलोमीटर 120 मीटर इज नियरर, ये कम है, पास है. एंड यू हैव टू फाइंड बाय हाउ मच, कितना कम है ये. रोहन के हाउस से सोहन का हाउस कितना कम है डिस्टेंस इसका. So that means you have to find out the difference. इन दोनों में कितना डिफरेंस है. And to find out the difference, what you have to do? You have to subtract. हमें क्या करना है? Subtract करना है. माइनस करेंगे हम. तो read the question carefully. रोहन का हाउस स्कूल से कितना दूर है? That is given. And सोहन का हाउस कितना दूर है स्कूल से? That is also given. Whose house is nearer to school? स्कूल के पास वही होगा जिसका डिस्टेंस कम होगा. सो जिसका डिस्टेंस कम होगा स्कूल से, दैट इज सोहन्स हाउस 3 किलोमीटर 120 मीटर. और कितना कम है? रोहन के हाउस से कितना कम है? सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन. यही बताया मैंने कि जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, जो गिवन है वो आपने लिखना है. सो रोहन्स हाउस, डिस्टेंस ऑफ रोहन्स हाउस फ्रॉम स्कूल. अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम. सो डिस्टेंस ऑफ रोहन्स हाउस फ्रॉम स्कूल. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे जैसा आपको ठीक लगता है. द ओनली थिंग इज द मीनिंग शुड बी करेक्ट. जो है क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए क्या आप लिख रहे हैं. सो डिस्टेंस ऑफ रोहन्स हाउस फ्रॉम स्कूल एंड डिस्टेंस ऑफ सोहन्स हाउस फ्रॉम स्कूल. सो रोहन का हाउस था 8 किलोमीटर एंड 250 मीटर्स. एंड सोहन का हाउस था 3 किलोमीटर and 120 meters, right? And what we have to find out? We have to find the difference, right? So हम difference find करेंगे कैसे? So सोहन्स हाउस कितना nearer है, right? So difference and the differences कितना है, इनको हम क्या करेंगे? Subtract करेंगे. Subtract it. So again I have told you, आप यहाँ पर भी यूनिट्स लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं. सो मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 - 0 0, 5 - 2 is 3, 2 - 1 is 1. नाउ सब्ट्रैक्ट द किलोमीटर्स एंड राइट डाउन द यूनिट. एंड 8 - 3 is 5. 5 किलोमीटर 130 मीटर. क्वेश्चन इज हुज हाउस इज नियरर. तो हमने पहले बता दिया था सोहन हाउस इज नियरर बाय हाउ मच. सो विल राइट द आंसर. सोहन्स हाउस इज 5 kilometer 130 meter nearer than रोहन्स हाउस. रोहन के हाउस से कितना कम है इसका डिस्टेंस? 5 किलोमीटर 130 मीटर.
right? Now next question, a roll of electric wire contains 88 meter 75 centimeter. Now one thing you can see here, जब हम मीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट्स जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम आंसर में भी वही यूनिट्स लिखते हैं. यहाँ पर आपका मीटर सेंटीमीटर ऐड हो रहा था तो आंसर में आया था मीटर सेंटीमीटर. यहाँ पर किलोमीटर एंड मीटर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो आंसर में हमारा क्या आया था, किलोमीटर एंड मीटर. सो ये बहुत ध्यान रखना है आपने, जो भी यूनिट आपका क्वेश्चन में गिवन है वही आपके आंसर में होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कंटेन्स 88 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ वायर. जो इलेक्ट्रिक वायर का रोल था उसमें कितनी वायर थी, 88 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. इफ 46 मीटर 55 मीटर वायर इज यूज्ड, इतनी वायर क्या हो गई, यूज हो गई हमारी. हाउ मच वायर इज लेफ्ट इन द रोल. टोटल इतनी लेंथ थी वायर की, इतनी यूज हो गई है. एंड हाउ मच वायर इज लेफ्ट इन द रोल, कितनी बच गई है. लेफ्ट मीन्स बच गई है. सो यू नो दैट लेफ्ट इज अ कीवर्ड ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट. लेफ्ट किसका कीवर्ड है, सब्ट्रैक्शन का. एंड आपको वैसे ही पता होना चाहिए, टोटल में से अगर जो हमारी यूज हो गई उसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बची हुई वायर हमारे पास रह जाएगी. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इन दिस केस. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन. सो टोटल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज देयर, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज देयर, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, length of wire left in the roll. So let us do this question also, then we will discuss the remaining question and you will try to do those questions yourself. So first of all we will write what is given. Okay, so what is given, total length of wire. inner roll भी लिख सकते हैं और खाली वायर भी लिख सकते हैं. And then length of wire used, that is also given. Total length कितनी थी हमारी, 88 मीटर and 75 centimeter. And length of wire used is 46 meter and 55 centimeter. And what we have to find? We have to find out the length of wire left. लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट कितनी, जो लेंथ है वो बच गई है. सो यू नो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टेड, सेंटीमीटर कम्स अंडर सेंटीमीटर. नाउ सब्ट्रैक्टेड, 5 minus 5 is 0, 7 minus 5 is 2. And now subtract the meters. 8 minus 6 2, 8 minus 4 is 4. So length of wire left is 42 meter and 20 centimeter. And now next question, John cycles 5 kilometers 650 meter in the morning and 8 kilometer and 300 meters in the evening. इतना डिस्टेंस इसने मॉर्निंग में साइकिल चलाई और 8 किलोमीटर 300 मीटर इवनिंग में साइकिल चलाई. हाउ मच डिस्टेंस डज ही साइकिल ऑल टुगेदर, सारा मिलाकर कितनी साइकिल इसने चलाई. सो अगेन यू कैन सी हियर देयर इज अ कीवर्ड ऑल टुगेदर एंड इट इज अ कीवर्ड ऑफ एडिशन. So just what you have to do, you have to add both the distances and you will get the total distance he cycled. So try to do this yourself. And now the last question of this worksheet, Rita bought 30 meter 70 meter cloth from a shop. इतना cloth वो लेकर आई है शॉप से. 25 meter 25 centimeter cloth is used. She used this much of cloth for making curtains. इतना cloth use हो गया. How much cloth is left behind with her? Again there is a keyword left and this is the keyword of subtraction. So you know what you have to do. Total length of the cloth is given. Length of cloth used for making curtain is given. And find out the length of cloth left behind is equal to, subtract both of them, you will get the answer. So to solve the word problems, read the question carefully. If there is a keyword, then you will easily find out which operation you have to use.
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और अगर कीवर्ड नहीं गिवन है सो देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज गिवन। उससे आपको आइडिया लग जाएगा एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यूनिट 9, that is weight. Thank you.